ایک ٹانگ کا بادشاہ ایک بادشاہ تھا جسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ جنگلوں میں جاتا اور ہرنوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی چالاک اور پھرتیلا گھوڑا اسے نظر آ جاتا، جھٹ اس کے مالک سے سودا طے کر لیتا اور اسے منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا خرید لیتا۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ایک ملک سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی، حضور عالم پناہ، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، آپ اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ ایسا پھرتیلا گھوڑا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے ایک اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا بھی ہے، بدکتا بہت زیادہ ہے، کسی کو بھی اپنے پاس آسانی سے بھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دو لاتیاں چلایا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی بدک جاتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو دیکھنا پسند فرمائے تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرض کی۔ سوداگر گھوڑے کی تعریف سن کر کے بادشاہ ہنسا اور کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو، اپنا گھوڑا لے آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹینڑے گھوڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس گھوڑے کو شاہی استبل میں لے جاؤ اور اس کے چارے کا انتظام کرو، کل ہم اس گھوڑے پر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے پروگرام کے مطابق بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں اور وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو خیریت سے گزر گئی، لیکن بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو ایک دم شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹک کر سرپٹ ایک طرف کو بھاگ کر کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس کی مدد کو پہنچے، شیر نے بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ بری طرح چبا ڈالی۔ بادشاہ کے ساتھی اسے اٹھا کر محل میں لائے اور فوراً شاہی حکیموں اور ویدوں کو بلایا گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے بری طرح سے کچل دی تھی کہ وہ اچھی نہ ہو پائی، اور آخر سب حکیموں اور ویدوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس ٹانگ کو کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ حکیموں اور ویدوں نے ایک آپریشن کر کے بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ٹانگ کا زخم بھر گیا اور بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کا بادشاہ کو بہت صدمہ تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا۔ اب اس نے شکار پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، ہر وقت مسہری پر خاموشی سے پڑا رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام مہجبین تھا۔ یہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں اس کی مسہری کے پاس بیٹھی رہتی اور ستار بجا بجا کر اپنی میٹھی اور سریلی آواز سے اس کو پیار سے پیارے گیت سنایا کرتی، لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھا رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اسے اپنی مصیبتیں بیان کرتے، اور یہ دانا آدمی یعنی عقل مند آدمی ان کو بہت مفید مشورے دے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا کہ وہ اس
नतीजे पर पहुँचे कि उस बूढ़े को बुलाना चाहिए, शायद ये बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा, बड़े मियाँ, तुम मेरे मुल्क में सबसे ज़्यादा दाना और अक्लमंद हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर दो तो मैं तुमको अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा, हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। मैं तख्त व ताज लेकर क्या करूँगा? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 वर्ष के करीब हो चुकी है और शहजादी अभी जवान है। भला बूढ़े और जवान का कभी साथ हुआ है? आप ऐसा कीजिए कि अपने मुल्क में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दे देंगे और उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये सुनकर बादशाह खुशी से उछल पड़ा और बोला, बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये राय बहुत पसंद आई। मैं अभी इसका इंतज़ाम करता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई हमारे लिए एक नई टांग लेकर आएगा उसके बदौलत उसको आधी सल्तनत दी जाएगी और मैं अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूंगा। ये ढिंढोरा सुनकर सैकड़ों लोगों का जी ललचाया और वो जल्दी जल्दी टांगे बनाने लगे। चंद दिन बाद सैकड़ों लोग मसनूई टांगे लेकर बादशाह के महल के सामने आ जमा हुए और लगे एक दूसरे को देखने और हल्ला मचाने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, बादशाह सलामत, टांग हाजिर है, बादशाह सलामत, टांग हाजिर है, बादशाह सलामत, टांग हाजिर है। हुजूर, मैंने बहुत अच्छी टांग बनाई है, आपको यकीनन पसंद आएगी। हर शख्स की यही कोशिश थी कि मैं सबसे पहले बादशाह के सामने पहुंचूं और अपनी बनाई हुई टांग पेश करके बहुत सा इनाम व इकराम हासिल करूं। लोगों ने इतना शोरगुल मचा रखा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। महल के दरोगा ने उन्हें ज़बरदस्त डांटा और कहा, अगर तुम लोग चुप ना होगे तो मैं अभी तुम सब लोगों के सर उड़ा दूंगा। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया, इन्हें एक एक करके हमारे सामने लाओ। पहला शख्स बादशाह सलामत के सामने पेश हुआ और लकड़ी की टांग बनाकर लाया था। कहने लगा, बादशाह सलामत, ज़रा इस टांग को तो आजमाइए, अगर ठीक ना हुई तो मैं अपनी नाक कटवा दूंगा। जब बादशाह ने वो लकड़ी की टांग अपनी कटी हुई टांग पर लगाई तो वो ऐसी भारी कि बादशाह को अपनी जगह से हिलना जुलना दोहर हो गया। बादशाह गुस्से से आग बगुला हो गया और उसने वही टांग उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी। अब दूसरा आदमी हाजिर हुआ, ये टीन की बनी हुई टांग लाया। देखने में तो ये टांग बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब बादशाह ने उसे अपनी कटी हुई टांग के ऊपर लगाया तो वो वहीं फंस कर रह गई। टांग लाने वाले आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वो थर थर काँपने लगा। बादशाह के अमीरों और वज़ीरों ने बहुतरी कोशिश की कि किसी तरह ये टीन की टांग उतर आए, लेकिन कुछ कामयाबी ना हुई। आखिर लोहार को बुलवाया गया और उसने बादशाह को इस मुसीबत से बड़ी मुश्किल से छुटकारा दिलाया। बादशाह इस तकलीफ़ के बाद सख्त आग बगुला हो रहा था। उसने हुक्म दिया, इस बदतमीज़ आदमी के गले में यही टीन की टांग बांधकर उसे बदखों वाले तालाब में फेंक दिया जाए। उसके बाद वो भी बहुत से लोग टांगे लेकर बादशाह की खिदमत में पेश हुए। उनमें ऐसे भी बेवकूफ़ लोग शामिल थे जो कि रुई और कपड़ों की टांगे बनाकर लाए थे और कई एक बांस की टांगे भी लाए थे। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। शाम तक चलता रहा। खर्ज तरह तरह की टांगे बादशाह सलामत की खिदमत में पेश की गईं, लेकिन सब के सब बेकार। उन टांगों के लाने वालों का बहुत बुरा हाल हुआ और उन्हें धक्के देकर महल से निकाल दिया गया। अब बादशाह फिर उदास रहने लगा। वो सारा दिन गम की मूरत बना तख्त पर बैठा खला में घूरता रहता, ना किसी से बात करता, ना किसी से कुछ कहता, हर वक्त गम में डूबा रहता था। महल में हर कोई उदास था। बादशाह के उदास रहने से महल के अंदर हर कोई उदास रहता था।
कई महीने बीत गए मगर उसकी होंठों पर मुस्कुराहट न आई। शहजादी महजबीन अपने बाप की हालत देखकर हर वक्त रोती रहती। दरबार के हकीमों और वैदों ने एक दूसरे से कहा, अगर हमारा बादशाह सलामत इसी तरह उदास रहा और गम खाता रहा तो थोड़े ही दिनों के बाद मर जाएगा। इसी तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन बादशाह के दरबार में बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा हाजिर हुआ और बादशाह सलामत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने उस नौजवान को अपने पास बुलवाया और आने की वजह दरियाफ्त की। उसी वक्त बादशाह की बेटी महजबीन भी अपने बाप के पास ही एक छोटे से खूबसूरत तख्त पर बैठी थी। वो खूबसूरत शहजादे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। शहजादे ने भी शहजादी को बड़ी मोहब्बत भरी अंदाज से देखा और मुस्कुराने लगा। शहजादे शर्मा गई। शहजादे ने कहा, बादशाह सलामत, इस ग़ुलाम को आपके दुख दर्द का सब हाल मालूम है और मैंने आपकी उदासी और गम का राज भी मालूम कर लिया है। आप उसी वक्त अपने तमाम अमीरों और वज़ीरों को अपने पास बुला लाएं। उस वक्त मैं हुजूर की खिदमत में सच मुझ की टांग पेश करूँगा। वो लकड़ी, टीन, कपड़े या रुई की ऐसी वाहियात टांग नहीं होगी बल्कि खून और गोश्त की बनी हुई टांग होगी। बादशाह सलामत की आंखें शहजादे की बात सुनकर खुशी से चमक उठी। कहने लगा, ऐ नौजवान, क्या तू सच कहता है? क्या तू सच में टांग लेकर के आएगा? शहजादे ने कहा, हाँ, कंगन को आरसी क्या है? कल इसी वक्त दरबार में हुजूर अपनी आंखों से देख लेंगे। ये देखकर बादशाह को बड़े अदब के साथ में झुककर सलाम किया और तेजी से दरबार से बाहर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने अपने सब अमीरों और वज़ीरों को दरबार में जमा किया। बादशाह की बेटी भी महजबीन कल की तरह आज भी उसके पास एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। सब लोग बहुत बेसब्री से शहजादे का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद नौजवान शहजादा दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बॉक्स था। वो बादशाह के तख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बॉक्स खोला और एक हिरन की टांग निकालकर बादशाह के सामने पेश कर दी। तमाम दरबार पर सन्नाटा छा गया। अमीरों और वज़ीरों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शहजादी की तरफ कहर भरी नज़रों से देखा और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया। जितने वज़ीर थे, जितने वहाँ के ऊपर बादशाह के लोग थे, सब समझ रहे थे कि अभी बादशाह इसका सर कलम करने का हुक्म देगा और कितना खूबसूरत शहजादा है, अभी मार दिया जाएगा, सभी कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही बादशाह का सारा गुस्सा ख़त्म हुआ, उसके चेहरे से जो सुर्ख के गुस्से में लाली नज़र आ रही थी वो ख़त्म हुई और उसका गुस्सा मोहब्बत में बदल गया। उसका नफ़रत मोहब्बत में बदल गया। सारा गुस्सा उतर गया और उसने ज़ोर से एक कहकहा लगाया, यानी ज़ोर से हंसा खूब। ये देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए कि कहीं बादशाह पागल तो नहीं हो गया, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वो भी सब हंसने लगे। और महजबीन का तो ये हाल था कि हंसी के मारे वो बेहोश हुई जा रही थी। इतना महजबीन हंस रही थी। बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे शर्त जीती है, मैं उसकी दाद देता हूँ और अब मैं कभी गमगीन ना रहूँगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी होगी। दूसरे दिन शहजादे और महजबीन की शादी हो गई। उस रोज़ बादशाह ने अपने सब अमीरों और वज़ीरों की धूमधाम से ज़ियाफ़त की और बादशाह महजबीन और शहजादे ने वो हिरन की टांग खूब मज़े से खाई, उस मज़े से उसको नोश किया। आप बताइए दोस्तों, बादशाह उस टांग को देखकर पहले गुस्सा क्यों हुआ, बाद में खुश क्यों हुआ?
اس کا جواب مجھے آپ دیجئے۔ میری سمجھ میں تو خیر کچھ نہیں آیا، میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنا دیا ہے، آپ مجھے بتائیے گا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ بادشاہ اتنی تیزی کے ساتھ میں ہنسا۔ اور دوستو حکایت کیسی لگی آپ مجھے بتائیے۔ پہلی مرتبہ اگر آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔